Welcome back, students. The topic is guidelines to make an effective presentation. See, before creating a presentation, it's better to know what makes a good presentation. Because अगर आप इन स्टेप्स को इन पॉइंट्स को ध्यान नहीं देंगे तो भी आप प्रेजेंटेशन तो बना सकते हैं बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफ़ेक्टिव बिकॉज प्रेजेंटेशन जब भी बनाया जाता है तो वो ऐसा होना चाहिए दैट शुड बी आई कैचिंग एंड understandable by the audience. So, today we are going to talk about some important characteristics of the presentation and how we can make a good quality presentation. So, Microsoft PowerPoint can be used effectively to make and pursue presentation. To make your presentation effective, we have to follow the following points. First, keep it simple. That means always try to keep your presentation simple by using charts which are easy to understand and graphics that reflect what you are saying. तो जैसे अगर मान लो हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और उसमें हम केवल टेक्स्ट लिखते रहें, कुछ लाइन ही लाइन टेक्स्ट हम लिखते जाएं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इफ़ेक्टिव. बिकॉज जब हम किसी चीज़ को चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज़ ईजली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूजर्स एंड ऑडियंस, एंड दैट इज़ वाई इट्स सेड that keep your presentation simple. The thumb rule of making a good presentation is to ensure that there are not more than 5 words in each line and not more than 5 lines in each slide. ये thumb rule है कि आप जब भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइन में 5 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए और एक पेज पे, एक स्लाइड पे 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे जो यूज़र्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, वो ईज़िली उसको रीड कर सकें, उससे रिलेट कर सकें. अदरवाइज इफ़ यू pasting, if you are writing number of line like 10-20 lines and decreasing the font size and inserting 10-20 words per line, then it is quite we can say ki it is quite tough for the audience to understand it and read it. Now the second rule is minimize facts and figures in the slide. The PowerPoint has the capacity to convey ideas and support a speaker remark in the concise manner. You should avoid to include too many figures and numbers. तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो फिगर्स और नंबर्स देते हैं उसको आप मिनिमाइज़ कीजिए एंड मेक इट सिंपल एंड रिप्रेजेंट जस्ट योर आइडियाज़ एंड व्यू पॉइंट. तो आप क्या करेंगे, आप अगर मान लो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन ना लिखिए, आप उसके की पॉइंट्स को वहाँ रखिए, जो उसके फैक्ट्स और फिगर्स हैं उसको वहाँ पे ना रिप्रेजेंट कीजिए. जस्ट वेन एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, so at that time you will explain by yourself, but don't put all things on the slide. Now next thing is use vibrant color. So striking color contrast between word graphics and the background can be very effective in conveying both messages and emotions. तो जब भी आप कोई भी स्लाइड बना रहे हैं तो कलर्स ऐसे यूज़ कीजिए जो वाइब्रेंट हो, आई कैचिंग हो और कॉन्ट्रास्ट कलर्स हो. जैसे जो बैकग्राउंड है उसका कलर कुछ और होना चाहिए और जो फोरग्राउंड में टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, उनका कलर कुछ और होना चाहिए, जिससे हम आसानी से जो ऑडियंस है वो उनमें सेपरेट कर सकें, उनको देख सकें, जिससे हमारी जो मैसेज है वो ईज़िली पहुंच सके ऑडियंस तक. देन आफ्टर इंपोर्ट इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस.
तो do not limit your presentation to the collection of clip art, etc. Provide in PowerPoint. Import images, graphics, and videos from better विजुअल अपील एंड वैरायटी। तो आप अपने प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए वीडियोस इंसर्ट कीजिए, ऑडियोज़ इंसर्ट कीजिए, पिक्चर्स इंसर्ट कीजिए, जिससे आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और बेहतर दिखे। नाउ यूज़ humor in your presentation, that means humor help to convey a message effectively and loosen up the crowd. Now edit ruthlessly. So after creating the PowerPoint slide, imagine yourself as one of the listeners and critically review your presentation. तो एक बार आपने प्रेजेंटेशन बना लिया तो ऐसा नहीं कि आपका काम कंप्लीट हो गया, आप अपने आप को मानिए कि यू आर द ऑडियंस एंड सी द प्रेजेंटेशन एंड try to find out the loophole or problems in the presentation and then rectify it, remove that problem. Again, repeat the same process twice and thrice to identify any left problem and remove it from the presentation. So if you find something unappealing, distracting or confusing, either modify it or remove it. The above point should be kept in mind while designing the presentation, whereas the following should be observed while showing the presentation. तो ये जो ऊपर आपने पॉइंट्स देखे हैं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय हमें ध्यान देना होता है, और अब जो चीज़ें हम देखने जा रहे हैं वो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस समय हमें ध्यान में रखना है। जो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, होल्ड अप योर एंड विद इंटेसिंग convincing material. तो sometimes the ease of use to create simple and engaging presentation with eye-catching slide and graphics in PowerPoint becomes its own enemy. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इतना बेहतर बना दिया प्रेजेंटेशन को, इतने वाइब्रेंट कलर्स रख लिए, चीज़ें रख ली, वही उसकी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ होंगी, इतने ज़्यादा स्लाइड्स होंगे कि जो यूज़र है, ऑडियंस है, वो धीरे धीरे डाइवर्ट होने लगेगा, उसका मतलब एक तरीके से कह लो कि फोकस लूज़ होने लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पीपल डू नॉट मेयरली स्टेयर एट इमेज टॉस्ड ऑन टू अ स्क्रीन, दे ऑल्सो विश टू हियर यू। तो पीपल केवल ये नहीं चाहते हैं कि जो इमेज है वो टॉस होके आ रही है या फेड होके आ रही है या एनिमेशन इफेक्ट से कूदते हुए आ रही है, या आप देखते हो कि वो आ रही है और चिड़िया बन के उड़ जा रही है, जो डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट है जो अक्सर आप लोग यूज़ करते हो। तो पीपल केवल यही नहीं देखना चाहती है, पीपल आपको सुनना भी चाहती है, आपके एक्सप्लेनेशन को भी सुनना चाहती है। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, बट मेक श्योर दैट your spoken remarks should be appealing to the ear of listeners. Remember, PowerPoint doesn't deliver presentation, it makes slide which support a spoken presentation. And as the spokesperson, if you are presenting the PowerPoint slideshow, it's your task, your part to present in front of user in a good manner so that users can relate with the slides. तो PowerPoint प्रेजेंटेशन हम केवल दिखाने के लिए नहीं बनाते हैं, ऑडियंस क्या चाहती है कि उसके साथ साथ आपके एक्सप्लेनेशन को, आपकी वॉइस को भी हेयर करे। तो दैट इज़ वाई वी से कि होल्ड अप योर एंड विथ इंटाइसिंग एंड कन्विंसिंग मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज डोंट पैरट पावर पॉइंट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी पावर पॉइंट का तोता ना बनिए। जैसे तोता क्या करता है, पैरट क्या करता है कि जो आप सिखाओगे उसी को, जो आप बोलोगे उसी को वो दोबारा बोल देगा।
तो पावर पॉइंट पैरेट बनना मतलब क्या है कि पावर पॉइंट स्लाइड पे आपने 10 लाइन रखी है, सपोज करो एक स्लाइड पे, तो आप वही लाइन पढ़ने लगे कि लाइन से एक एक लाइन आप पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट कि यूज़र्स जब उसे देख सकते हैं, तो अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप केवल उसे पढ़ते जा रहे हो। जैसे मान लो कि मैं ही आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और मैंने कहा डोंट पैरेट प्रेजेंटेशन, नेवर रीड द विजुअल प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस, इट मेक्स इवन द मोस्ट विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन बोरिंग टू बोन, अ प्रेजेंटेशन वर्क्स बेस्ट द स्पोकन रिमार्क्स दैट आर्ग्यूमेंट एंड डिस्कस व्हाट इज प्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। और इस तरीके से मैं आगे बढ़ गया, मैं केवल बोला और आगे बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि आई एम पैरेटिंग ऑल द लाइन्स ओनली, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट। तो जो व्यूअर्स हैं वो ये समझेंगे कि जब सामने दिखाई हुआ है तो कोई पढ़ रहा है तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है। तो ट्राई टू include your remarks, try to give the discussion, try to have a healthy discussion on the topic, explain the lines to the audience so that audience can relate with it। तो वही यहाँ दिया है कि कभी भी आप विजुअल प्रेजेंटेशन को केवल रीड ना करें, इट मेक्स इवन मोस्ट विजुअली अपीलिंग प्रेजेंटेशन बोरिंग। तो अगर आप केवल लाइंस को पढ़ते केवल जा रहे हैं तो आपकी जो विजुअल प्रेजेंटेशन है वो आगे चल के बोरिंग हो जाएगी। और प्रेजेंटेशन जब तक आप रिमार्क्स नहीं देंगे, आर्गुमेंट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बोरिंग ही लगेगा। नाउ वाइल प्रेजेंटिंग मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर ऑडियंस। तो अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो जितने भी ऑडियंस हैं उनसे आई कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट द ऑडियंस डज नॉट विश टू सी द बैक ऑफ योर हेड, सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस एंड दैट शोज योर स्ट्रेंथ, that shows that you are confident and the viewers, listeners can connect with you and they can understand it in a better manner. Now time your remarks. So proper care should be taken while giving remarks. Your comment should not coincide precisely with the appearance of a fresh PowerPoint slide. It splits the audience attention. Never talk on top of your slide. बात कब करो? जब पूरा स्लाइड के सारे लाइन व्यूअर्स के सामने आ जाएं, then talk with them, then discuss with them, then explain it. Now, making a powerful first impression. जैसा आपने सुना है, first impression is the last impression. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यू कैन नॉट मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन ट्वाइस। आप कभी भी अपना फर्स्ट इंप्रेशन 2 बार नहीं बना सकते। तो द ऑडियंस विल मेक डिसीजन अबाउट यू फ्रॉम योर फर्स्ट अपीयरेंस, योर वर्ड्स एंड द इनोटेशन ऑफ योर वॉइस। प्लान द ओपनिंग ऑफ योर प्रेजेंटेशन प्रिसाइजली, यूज शॉर्ट sentences and keep minimum technical information. Grab the attention of the audience with a joke, an interesting fact, a short anecdote, a quotation, a positive statement or a stimulating question. तो इस तरीके से अपना फर्स्ट इम्प्रेशन आप बनाइए, कोई जोक सुना के, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बता के, कोई नोट, कोई कोट या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देके कि जो लिसनर है उनके माइंड में आपकी जो इमेज है वो पहले ही बन जाए कि ओके, ही इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटर, ही इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन इट इन अ प्रॉपर मैनर, देन ओनली दे कैन रिलेट विद यू। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज गिव इट अ रेस्ट। तो PowerPoint is an effective tool as visual companion to the spoken word, but you must let the screen go blank on certain occasions. For example, जैसे मान लीजिए आपने एक स्लाइड दिखाई, अब उसके बाद आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करते समय आप अपने उस स्लाइड के बाद एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लीजिए।
जिससे क्या होगा कि जब आप बोल रहे हैं तो उस समय जो लिसनर्स हैं उनका ध्यान स्क्रीन पे नहीं जाएगा. तो by doing so, your audience will not only get a visual break, but it also an effective way to focus attention and more verbally focused give and take such as group discussion or interactive session. Now, practice makes a man perfect. This is the last thing which you have to think about. Ki as many as number of time you practice your presentation, you will become perfect. So no professional in the field platform without practicing. So remember, your time in front of audience is your showcase. So practice, 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 then deliver makes you perfect. So try to adhere to all the guidelines while designing and while presenting in front of the audience. So student, I hope you all understood what I am trying to explain. In case of any doubt, please feel free to contact. Thank you. That's all for this video. In next video, we will start from basic elements of a slide. Thank you.